हाय एवरीवन। तो हम 14 दिसंबर का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का क्वेश्चन मैप्स और स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड है। समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का नाम है कंटिन्यूअस सब एरेज। इस क्वेश्चन में हमें जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे दिया गया है जिसका नाम नम्स है एंड अ सब एरे ऑफ नम्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इफ। तो देखते हैं कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है। सो सपोज लेट आई प्लस वन अप टू जे बी इंडाइसेस इन द सब एरे, देन फॉर ईच पेयर ऑफ इंडाइसेस आई टू जे nums of i1 minus nums of i2 और इनका mod तो if this difference absolute difference is less than or equal to 2, then they will call it as continuous subarray. Now they are asking return the total number of continuous subarrays, and then they have defined what a subarray is, so that we already know. So let's see by the example. So in first example, this is our array 5 4 2 4. Now see, first of all, for size 1 we are having 4 subarrays. Why? Because see, if we have only one element in our subarray, so this is what the definition is, right, for every pair. So if there is no other element, then 5 will make a pair with itself. So now the difference between these two would always be 0, right? So for each size 1 array, the difference will always be 0, which is less than 2. So that's how all the elements will make at least one subarray, right? So that's how for size 1 the answer is 4. Please dekh liye. Now let's check for size 2. So see, these many subarrays are possible. So 5 4 can make a subarray because difference would be 1, then 4 2 can make a subarray, then difference would be 2, which is less than or equal to 2, and finally 2 and 4 will also make a subarray. Now see, so that's how यहाँ पे count would be 3. Then if we move ahead and we'll try for size 3, so 5 4 2, this should be our first subarray, right? But this cannot be. Why? Because see, हमें हर पेयर के लिए देखना है. So 5 4 का डिफरेंस डेफिनेटली 1 है, which is less than 2. But if we form a pair of 5 2, then the difference is 3, and 3 is above 2, right? So 3 is greater than 2. So this cannot be a subarray as per our definition. So we'll not take that, and then the only subarray for size 3 would be 4 4, because for every pair of these three elements, the difference would be either less than 2 or equal to 2. So fine. Now if we move ahead and we'll try for size 4, so again see, if we want to take a subarray of size 4, then 5 and 2 both should be there in that subarray, right? But we have already seen that 5 और 2 का difference 3 है, which is not satisfying our definition. So इसलिए for subarray of size 4 there would be no subarray, and when we add all of these, so the summation would be 4 plus 3 plus 1, that is 8. And similarly we can check with this example also. And finally the constraints are the nums length can be of 10 to the power 5 maximum, and the value can be of 10 to the power 9. So now let's try to think of the solution. तो सबसे पहले तो जो एकदम सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच आती है ना हमारे दिमाग में, वो क्या हो सकती है? तो सी, हमें क्या करना है, सबेरी ही फाइंड करनी है ना विद अ गिवन डेफिनेशन. तो क्यों ना हम जैसे सबेरी फाइंड करते हैं वही तरीका लगा रहे हैं इसमें भी, सिर्फ एक कंडीशन एक्स्ट्रा चेक कर लेंगे हम. सो व्हाट आई मीन टू से बाय दैट इज, ओके, सो ये हमारा गिवन एग्जांपल है. हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉइंटर आई लेंगे और एक पॉइंटर जे ले लेंगे, ठीक है? इससे हम अपने एरे पे आइटरेट करना शुरू करेंगे, और जब जब हमें वैलिड सब एरे मिलेगा हम अपने काउंटर को इंक्रीज करते जाएंगे. सपोज हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया है. सो अभी देखिए आई एंड जे एक ही पॉइंट पे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 5, राइट? तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5 माइनस 5, ये 0 है, राइट? तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एक वैलिड सब एरे है. तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, फिर हम अपने आई को आगे मूव कराएंगे. अब देखिए जी, यहाँ पे भी कंडीशन जो है वो वैलिड है. 5 माइनस 4 दैट इज 1 विच इज लेस देन 2. तो यहाँ पे भी कंडीशन वैलिड है. अगर तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे तो अब हमारे काउंटर 2 हो गया. इसके बाद हम जे को फर्दर आगे बढ़ाएंगे. तो अब देखिए यहाँ पे जब हम आएंगे ना, तो 5 माइनस 2 ये ग्रेटर देन 2 आएगा, आंसर 3 आएगा विच इज ग्रेटर देन 2. तो यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो रही है. तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जे को आगे मूव ना करके हम अपने आई को आगे मूव कर देंगे. तो हमारा आई यहाँ पे पॉइंट करेगा और जे को वापस से हम आई पे सेट कर लेंगे. नाउ सी अगेन द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 4 वुड बी 0. तो यहाँ पे भी हम अपने काउंटर को इंक्रीज कर देंगे, फिर हमारा जे आगे मूव करेगा. और उसके बाद देखिए 4 एंड 2 का डिफरेंस अगेन 2 है, तो कंडीशन वैलिड है. तो हम अपने काउंटर को फिर से इंक्रीज करेंगे और अब जे को आगे बढ़ा देंगे, एंड अगेन द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 4 वुड बी 0. तो यहाँ पे भी हम अपने काउंटर को आगे बढ़ा देंगे. और अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे ना, तो यही तीन 4 देन 4 2 एंड 4 2 4, यही तीन सब एरीज मिलेंगे, राइट? हमें जब व्हेनेवर वी स्टार्ट फ्रॉम 4. फाइन. तो अब हमारा जे आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो हम अपने आई को आगे मूव कर देंगे. अब हम वापस से 2 से स्टार्ट करेंगे, तो अभी जे भी हमारा 2 पे पॉइंट करेगा. सो डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 2 अगेन 0. तो काउंटर इंक्रीज हो जाएगा, फिर हम जे को आगे मूव करेंगे. देन अगेन डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 4 लेस देन 2 और इक्वल टू 2. तो अगेन काउंटर इंक्रीज होकर 7 हो जाएगा, एंड देन जे विल गो आउट ऑफ बाउंड, राइट? सो हम क्या करेंगे, आई को आगे मूव कर देंगे. तो अभी आई एंड जे दोनों इस 4 पे पॉइंट कर रहे हैं. अगेन द डिफरेंस इज लेस देन 2.
बिकॉज दैट इज जीरो। तो अगेन हम अपने काउंटर को इंक्रीज करेंगे और अब हमारा जी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा और उसके बाद आई भी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, एंड दिस इज हाउ वी कैन सी आवर आंसर इज कमिंग 8. So this would be the brute force approach. Now, if we see the time complexity for this approach, it would be n square, right? And we have already seen the maximum length can be 10 to the power 5. So this solution would go up to 10 to the power 10, which will not be accepted in 1 second. तो हमें कोई ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच सोचनी होगी इसके लिए। अप्रोच को समझने के लिए अगर हम इस पे अपने पुराने वाले एग्जांपल पे ध्यान से देखें तो हमने किया क्या है, हमने दो पॉइंटर लिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और एक कंडीशन को चेक किया है, राइट? तो क्या हम वो किसी तरीके से वन गो में कर सकते हैं, हमें इस बारे में सोचना होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उस बारे में हमें सोचना होगा। तो जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल पे देखूं, यहाँ पे मैंने दो और इंटीजर्स ऐड कर लिए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए हो क्या रहा है कि हमारा अब अगर हम अपना पहला सवेरी स्टार्ट करें तो देखिए यहाँ पे ये सवेरी वैलिड है, राइट? इसके बाद यहाँ तक आए हम, यहाँ पे भी ये सवेरी वैलिड है। पर जब हम यहाँ पे आ रहे हैं ना तो ये फिर यहाँ पे आके हमारी कंडीशन वायलेट हो जा रही है, राइट? इसके बाद अगर हम फिर से, ये तो हमने 5 से स्टार्ट होने वाला सवेरी देख लिया। इसके बाद अगर हम 4 से स्टार्ट होने वाला सवेरी देखें तो देखिए ये यहाँ पे भी वैलिड है, इसके बाद ये यहाँ पे भी वैलिड है। इसके बाद अगर हम यहाँ आएंगे ना तो देखिए यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू है 4, एंडिंग वैल्यू है 5, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो लेस देन 2 है। बट देखिए यहाँ पे बीच में एक वैल्यू आई है 2 एंड दूसरी वैल्यू है 5, तो ये अगर जब पेयर फॉर्म करेंगे ना तो इन दोनों का डिफरेंस लेस देन 2 नहीं रह पाएगा, राइट? तो यहाँ पे ये कंडीशन अगेन वायलेट हो रही है। तो ठीक है, हम यहाँ तक ना जाके इस 5 को नहीं लेंगे और 4 से स्टार्ट होने वाले सवेरे यहाँ तक की तो मिल जाएंगे हमें। इसके बाद से ठीक है, हमने इस 4 के लिए देख लिया। अब हम अगर इस 2 से अगेन स्टार्ट करें तो देखिए ये हमारी एक वैलिड सवेरे होगा। इसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो देखिए यहाँ पे फिर से 5 मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे कंडीशन वायलेट होगी। तो ये 2 4 5 हमारा एक वैलिड सवेरे नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। इसके बाद अगर हम अगले इंटीजर पे जाएं तो 4 से स्टार्ट होगा, राइट? तो 4 एंड 5 यहाँ पे सब कुछ वैलिड है। देन यहाँ पे लास्ट तक आके भी देखें हम तो देखिए ये भी वैलिड है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही है कि ये देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीपल विंडोज फॉर्म किए, राइट? तो क्या हम इसको समहाउ रिलेट कर सकते हैं स्लाइडिंग विंडो से? एंड द आंसर टू दैट इज डेफिनेटली, हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई विंडो फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कोई सा भी एक पेयर ऐसा ना आ जाए जिसमें जिसका डिफरेंस जो है वो 2 से छोटा ना हो, राइट? अगर 2 या 2 से छोटा है देन इट इज फाइन। अगर डिफरेंस कभी भी 2 से बड़ा हो जा रहा है तो वो कंडीशन वायलेट कर रही है, तो हम फिर विंडो को चेंज करने का ट्राई करेंगे। इसके बाद दूसरी नीड हमें क्या होगी तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए हम किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे, डिफरेंस ही तो चेक करेंगे ना। 5 का 4 के साथ देन 5 का 2 के साथ, और सपोज आगे अगर ये वैलिड है, मान लीजिए अगर हमें, तो हम किसी भी पॉइंट पे क्या कर रहे होंगे, 5 और 4 का डिफरेंस निकाल रहे हैं, फिर 5 एंड 2 का डिफरेंस निकाल रहे हैं, राइट? और कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो इंस्टेड कि हम हर बार ये डिफरेंस कैलकुलेट करें, एक बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि हम किसी भी सब एरे में मैक्स और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर लें, राइट? इससे हमें क्या हेल्प हो जाएगी, देखिए हमें क्या चाहिए कि किसी भी रेंज का जो डिफरेंस है वो लेस देन 2 रहे, राइट? तो इसको वायलेट करने के लिए जो बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं ना वो यही हो सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस अगर 2 से ज्यादा है तो फिर इतना पक्का है कि हमें मिल गया एक कंडीशन जो कि वायलेट कर रही है। और सपोज अगर यही इन दोनों का ही डिफरेंस लेस देन या लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे ना वो तो डेफिनेटली डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम दो बातें डिस्कस कर चुके हैं कि हमें स्लाइडिंग विंडो का यूज करना है और मिनिमम और मैक्सिमम का ट्रैक रखना है। एक तीसरी बात और डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज जब हम ये स्लाइडिंग विंडो का यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम दो पॉइंटर लेंगे एल और आर, राइट? तो किसी भी इंडेक्स आर के लिए जो नंबर ऑफ सब एरेज होने वाले हैं ना इस इंडेक्स आर पे एंड होने वाले, उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो द वे टू कैलकुलेट देम और द फॉर्मूला टू कैलकुलेट देम वुड बी आर माइनस एल प्लस वन, राइट? जो भी इस विंडो की लेंथ है हमारे पास उतने ही सब एरे पॉसिबल होंगे, एंड दैट इज करेक्ट ऑल्सो, राइट? सपोज अगर हमारा यहाँ पे अभी एल अगर हमारा इधर पॉइंट कर रहा है इस 4 पे, तो ये देखिए एक वैलिड विंडो है, यहाँ पे हर पेयर का डिफरेंस आपको 2 ही मिलेगा या लेस देन 2 मिलेगा। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे सब एरेज कैलकुलेट करें इस 4 पे एंड होने वाले, तो सबसे पहले तो ये 4 इटसेल्फ हो जाएगा, उसके बाद 2 एंड 4 एंड देन 4 2 4। तो देखिए यहाँ पे तीन सब एरे मिल रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले से आंसर कैलकुलेट करें तो आर यहाँ पे होगा 3 माइनस एल होगा 1 प्लस 1, सो दिस इज ऑल्सो 3, राइट? तो इसलिए हम इस फॉर्मूले से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना आंसर कैलकुलेट करते जाएंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल पे ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या हम इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने इस एग्जांपल में एक स्लाइड सा मॉडिफिकेशन किया है ताकि सारे केसेस क्लियर हो जाएं। तो इसका ड्राई रन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एल और आर दो वेरिएबल ले लेते हैं। एल हमारा करंट टी यहाँ पॉइंट करेगा और आर भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। उसके अलावा एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि हम सवेरी का काउंट रखेंगे, और एक काम करते हैं मैक्सी और मिनी नाम के दो वेरिएबल ले लेते हैं जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम का काउंट रख रहे होंगे, राइट?
तो अगर हम अभी स्टार्ट करें तो देखिए एल और आर दोनों सेम है, तो जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम होगा दोनों के दोनों सेम होंगे। इन दोनों का जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो आएगा, विच इज लेस देन जीरो, राइट, लेस देन टू। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम अपने काउंटर में जो भी इस विंडो की लेंथ है विच वुड बी आर माइनस एल प्लस वन, अगेन हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और उसको अपने काउंटर में ऐड कर लेंगे। फिर हम अपने आर को आगे मूव करेंगे, तो अब हमारा आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। नाउ अगेन सी, मैक्सिमम तो 5 ही रहेगा बट मिनिमम घट के 4 हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे भी हमारी कंडीशन लेस देन, यहाँ पे मैं कंडीशन भी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमारी जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम लेस देन टू वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, राइट। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी विंडो लेंथ है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और उसको काउंटर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लेंथ होगी 2। फिर हम अपने आर को आगे मूव कराएंगे, तो अब हमारा आर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो सी, हमारा मिनिमम तो 4 ही रहेगा और मैक्सिमम भी 5 ही रहेगा, राइट। मैक्सिमम मिनिमम में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर हम फिर से ये कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन वैलिड है। तो हम अगेन विंडो की लेंथ आर माइनस एल प्लस वन को इसमें ऐड करेंगे और अपने आर को आगे मूव कर देंगे। तो अब हमारा आर पॉइंट कर रहा है इस 2 पे, राइट। तो अब अगर हमारा आर इस 2 पे पॉइंट कर रहा है तो हम फिर से मैक्सिमम मिनिमम को अपडेट करने जाएंगे, तो मैक्सिमम तो अगेन 5 ही रहेगा। बट मिनिमम देखिए 4 इज ग्रेटर देन 2, तो हम यहाँ पे मिनिमम को 2 से अपडेट कर देंगे। और जब हम यहाँ पे अब डिफरेंस निकालेंगे ना 5 माइनस 2, तो ये आएगा 3, विच इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो गई। और अगर कंडीशन वायलेट हो गई तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इस विंडो को श्रिंक करके एक वैलिड विंडो फॉर्म करनी होगी। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। विंडो को अगर हमें श्रिंक करना है तो हमें अपने एल पॉइंटर को मूव करना होगा, राइट। तो अभी हमारा एल पॉइंट कर रहा है इस 5 पे, तो हम क्या करेंगे, इस एल को आगे मूव करेंगे और अपने मैक्सिमम मिनिमम को अपडेट करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो अगर हमने इस एल को आगे मूव किया तो अब हमारा एल पॉइंट कर रहा है इस 4 पे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब तो हमने ये इस 5 को हटा दिया है, राइट। अगर हमने इस 5 को हटा दिया है तो अब हमें ये मैक्सिमम और मिनिमम को चेंज करना होगा। तो करंटली सी, जब हमने शुरू किया था तो अभी हमारी विंडो यहाँ पे थी, राइट। हम इस 2 को अगर ऐड कर लेंगे तो हमारी विंडो यहाँ पे थी। हम इस 5 को अगर हटा दे रहे हैं तो अब हमारी विंडो यहाँ इतनी है। तो इनमें हम फाइंड कैसे करें कि अब हमारी इस विंडो में मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, राइट। हमारे पास कोई ट्रैक ही नहीं है कि इस वक्त अगर हम इस 5 को रिमूव कर दें तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी। हमारे पास इसका कोई ट्रैक नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैप या सेट या कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर लेके चलना पड़ेगा जिसमें कि हम अपनी ये विंडो में जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको फिल कर सकें, राइट। और देखिए, अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखें ना तो हमारी विंडो में मैक्स टू मैक्स 3 ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएं। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस हमेशा 2 या 2 से कम भी तो रखना है, राइट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम कोई 4 डिफरेंट एलिमेंट्स लेके चल लें। जैसे कि आपके केस में ऐसा कभी नहीं होगा कि 4, 8, 12 ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं। क्यों? क्योंकि ये आ ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। इनका डिफरेंस 2 से छोटा है ही नहीं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना अगर आपकी विंडो में एक एलिमेंट ऐसा आ गया जो कि 3 है, तो एक एलिमेंट 5 पॉसिबल है और एक एलिमेंट 1 पॉसिबल है। अब 1 से छोटा आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, 5 से बड़ा आप कहीं पे जा ही नहीं सकते हो। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी 1 एंड 5 का डिफरेंस 2 से ज्यादा आ जाएगा। तो इसलिए हमें ना क्या करना है, कोई सेट मैप वेक्टर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लेके चलना है और जिसमें कि हम ये जो भी हम अपनी विंडो में अभी तक एलिमेंट्स है ना उनको स्टोर करा सकें। तो यहाँ पे मैप एकदम सुटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि सी, अगर हम मैप लेंगे ना तो हम यहाँ पे इस 5 की फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर सकते हैं, राइट। ताकि हमें ये भी तो पता रहे कि सपोज यहाँ पे देखिए 5, ये वाला 5 भी इस 2 के साथ हमारी विंडो को वायलेट करेगा और ये वाला 5 भी वायलेट करेगा। तो हम अगर वो मैप लेंगे ना तो उसमें हम इन फ्रीक्वेंसीज का काउंट रख सकते हैं और हम अपने एल पॉइंटर को ना तब तक मूव करेंगे जब तक कि हम सारी वायलेटिंग 5s को रिमूव ना कर दें, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे एक मैप का यूज करेंगे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। फाइन, तो इसके साथ ही हमें एक मैप भी यूज करना होगा जिसमें कि सारे एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे और उन एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी। तो अगर हम एक मैप लेके इस क्वेश्चन का पूरा ड्राई रन करें जल्दी से, ठीक है। तो हम अपना ये मैप के साथ एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो इनिशियली देखिए काउंटर 0 होंगे, एल और आर सिर्फ 5 को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम को 5 कर दिया। अपने मैप में जाके इस 5 के लिए फ्रीक्वेंसी को 1 से अपडेट कर दिया। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेंगे हम। तो देखिए कंडीशन अभी वैलिड है, राइट। तो 5 माइनस 5 दैट इज 0 विच इज लेस देन 2। तो हम क्या करेंगे, आर माइनस एल प्लस 1 से अपने काउंटर में यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो आर अभी 0 पे है, एल भी 0 पे, 0 माइनस 0 दैट इज 0 प्लस 1। तो इसके बाद हम अपने आर को आगे मूव करेंगे। तो आर अब हमारा 4 पे पॉइंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैप में आके इस 4 के लिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। इसके बाद हम अगली चीज मैक्सिमम मिनिमम को अपडेट करेंगे। तो अब मैक्सिमम तो हमारा 5 ही रहेगा बट मिनिमम अपडेट होके 4 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन अभी भी वैलिड है, तो अपने आंसर में हम जो भी काउंटर नाम का वेरिएबल उसमें अगेन इस विंडो की लेंथ को ऐड कर देंगे। तो ये होगी इस बार 1,
फिर हम क्या, सॉरी 2 होगी r माइनस एल, r हमारा 1 पे है, माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया है। फिर अगर हम आगे मूव करें तो हमारा r अब इस 5 को पॉइंट करेगा, तो सबसे पहले तो हम 5 के लिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, तो अब ये बढ़ के 2 हो जाएगी। इसके बाद कंडीशन अभी भी वैलिड है, और फिर हम सॉरी मैक्सिमम मिनिमम को अपडेट करने जाएंगे, तो मैक्सिमम तो ऑलरेडी 5 है, तो ये चेंज नहीं होगा, और मिनिमम भी देखिए 4 ही रहेगा, तो अगेन ये कंडीशन चेंज नहीं हुई। फिर हम यहाँ पे अपनी ये कंडीशन टेस्ट करेंगे, ये अभी भी वैलिड है, तो हम अपने आंसर में अगेन r माइनस एल प्लस 1 से इसमें 3 ऐड करेंगे, और फिर हमारा r मूव होके आगे चला जाएगा। तो अब देखिए अब हमारा r इस 2 को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम अगेन सबसे पहले तो इस 2 के लिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, और फिर हम मैक्सिमम मिनिमम को अपडेट करेंगे, तो अब देखिए 2 4 से छोटा है, तो हमारा मिनिमम चेंज होकर 2 हो गया। अब अगर हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 2 विच इज 3 एंड दैट इज नॉट लेस देन 2, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई वायलेट। अगर कंडीशन वायलेट हो गई तो अब हमें अपनी विंडो को श्रिंक करना होगा, राइट। तो अगर हमें विंडो को श्रिंक करना है तो हम अपने एल पॉइंटर को आगे मूव करेंगे, बट उससे पहले जो एल जहां पे भी पॉइंट कर रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। तो अभी एल पॉइंट कर रहा है इस 5 पे, तो सबसे पहले तो मैप से इस 5 की फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, तो अभी ये 2 है, इसको हमने कम करके कर दिया 1, और फिर एल को आगे मूव किया, तो अब हमारा एल पॉइंट करेगा इस 4 पे। जब हमने इसको यहाँ आगे मूव कर दिया तो हमें अगेन मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करना होगा, राइट। तो वो हम इस मैप से फाइंड कर लेंगे। तो अभी अगर हम अपने मैप मैप से मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करें, तो हमारा मैक्सिमम होगा 5 और हमारा मिनिमम होगा 2, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने एल को, अभी भी देखिए कंडीशन हमारी वायलेट ही हो रही है, तो जब तक हमारी कंडीशन वायलेट होगी तब तक हम अपने एल पॉइंटर को मूव करते रहेंगे। तो हम अपने एल को अगेन आगे मूव करेंगे, तो एल को जब हम आगे मूव करेंगे तो जो भी अभी हमारा करंट नंबर था उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे, तो अभी 1 से इस 4 की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे और फिर से ये मैक्सिमम मिनिमम को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 5 है और मिनिमम 4 है। अगर हम इसमें अपने मैप में देखें, जैसे ही अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हुई थी तो हम इसको इस मैप से कम्प्लीटली इरेज कर देते, तो अभी भी देखिए मैक्सिमम और मिनिमम 5 और 2 ही रहेंगे। इसके बाद हम अगेन अपने कंडीशन अभी भी वायलेट हो रही, तो हम अपने एल को अगेन मूव करेंगे, तो अब ये एल पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, और इस 5 की फ्रीक्वेंसी घट के 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हुई तो हम इसको मैप से कंप्लीटली इरेज कर देंगे, तो अब मैप में सिर्फ 2 बचा है। तो इसके साथ ही ये मैक्सिमम भी 2 हो गया और मिनिमम भी 2 हो गया, और अब अगर हम डिफरेंस निकालें तो 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक बार अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम अगेन फिर से r माइनस एल प्लस 1 से अपने काउंटर को इंक्रीज कर देंगे, तो सी एल और r दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने काउंटर में सिर्फ 1 ऐड करेंगे। इसके बाद हम अगेन से अपने r को आगे मूव करेंगे, तो r अब इस 4 पे पॉइंट करेगा, तो हम सबसे पहले तो इस 4 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम को चेंज करेंगे, तो मिनिमम तो अभी भी 2 रहेगा, बट मैक्सिमम चेंज होकर 4 हो जाएगा, राइट। और इसके बाद अगेन हम ये कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हम अपने आर को आगे मूव कर देंगे, सॉरी पहले तो अपने इस काउंटर को इंक्रीज करेंगे, तो r माइनस एल प्लस 1 से जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद हम अपने आर को फिर से आगे मूव करेंगे, तो मूव करते ही साथ हम पहले तो मैप में इसको स्टोर करा लेंगे, फिर अगेन अपने मैक्सिमम को चेंज करेंगे, जब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये अगेन 3 आएगा, राइट। तो कंडीशन अगेन वायलेट हो रही है। तो जैसे हमने पहले एल को मूव किया था, हम अगेन वो सेम काम करेंगे। तो सबसे पहले तो इस एल को मूव करने से पहले इस 2 के लिए फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, तो ये 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 होगी तो हम अपने मैप से कंप्लीटली रिमूव आउट कर देंगे इसको, और इसके बाद हम अपने एल को आगे मूव करा देंगे। अच्छा, एल को जब आगे मूव कराए तो अगेन हमें मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना होगा, तो अभी हमारा मिनिमम 2 था, ये अब 4 हो जाएगा, राइट। और मैक्सिमम यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 4 है। तो अब देखिए ये 5 एंड 4 अगेन ये कंडीशन वैलिड हो गई, राइट। 5 माइनस 4 विच विल बी 1 एंड 1 इज लेस देन 2, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन वैलिड है। अगर कंडीशन वैलिड है तो हम अगेन r माइनस एल प्लस 1 से अपने काउंटर को इंक्रीज कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 2। फिर हम अपने r को अगेन आगे मूव करेंगे, तो अब अब r इस वक्त इस 4 पे पॉइंट कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो हम 4 के लिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, और उसके बाद अगेन r माइनस एल प्लस 1 से आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आएगा 3 प्लस, फिर से हम अपने r को आगे मूव करेंगे, और अब देखिए हमारा r यहाँ के बाद आउट ऑफ बाउंड चला गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा ड्राई रन था जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, हम इसी को एकदम कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने जो भी ड्राई रन में देखा है उसी को मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख दिया है। सबसे पहले तो हमें एल आर मैक्स मिन ये वेरिएबल्स यूज करने हैं, और इसके साथ साथ एक सेट की जगह पे हमें मैप यूज करना है। इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देना है, जब भी हम इस पे लूप करेंगे ना, तो जो भी जहाँ पे भी हमारा आर पॉइंटर पॉइंट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देना है। फिर हमें ये कंडीशन जब तक मैक्स माइनस मिन ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब ये इनवैलिड विंडो है, तो तब तक हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट पॉइंटर को मूव करना है। तो लेफ्ट पॉइंटर को मूव करने से पहले जिस भी जगह लेफ्ट पॉइंटर जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को मैप से कम करनी है, और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो हम इसको कंप्लीटली इरेज कर देंगे। और जब हमने ये कर चुके हैं उसके बाद हमें हर बार ये मैक्सिमम और मिनिमम को रिकैलकुलेट करना होगा अपने मैप से, राइट। और फिर जब हम ये कर चुके हैं, इसका मतलब अगर ये थर्ड पॉइंट खत्म हो गए तो अब हमारी विंडो अगेन वैलिड विंडो है।
तो अगर विंडो वैलिड विंडो है तो हम अपने आंसर को अपडेट करेंगे r माइनस एल प्लस वन से, और फिर r को मूव कर देंगे एंड फाइनली हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज छूट रही है, वो ये कि हम मैप से इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट, मैक्स और मिन को। तो हम क्या करेंगे, हर बार सिंस हमारे मैप में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 ही एलिमेंट होने वाले हैं, तो हम हर बार इस मैप को आइटरेट करेंगे और ये मैक्सिमम और मिनिमम को अपडेट कर देंगे। कैसे आइटरेट करेंगे ये हम ड्यूरिंग द कोडिंग ही देख लेंगे। सो जल्दी से इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और इसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया था लेफ्ट राइट और एन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये होगा नम्स का साइज। इसके बाद एक मैप बना लेते हैं इंट कॉमा इंट का, और ये स्टोर करेगा किसी भी पॉइंट पे वैल्यू, और उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है। फाइन। तो लास्ट में हमें अपने आंसर को रिटर्न करना है, तो वो कर देते हैं, और इसके बाद हम अपनी ये विंडो प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब तक हमारा आर छोटा है एन से, तब तक हमें इस विंडो को प्रोसेस करना है और आर को हमें हर बार मूव करते रहना है। फाइन। और इसके बाद सबसे पहले हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना होगा जहाँ पे भी आर पॉइंट कर रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, एमपी ऑफ नम्स ऑफ आर के लिए यहाँ पे हम मैप में प्लस प्लस कर देते हैं। तो इसके बाद हमें अपने मिनी और मैक्सी वेरिएबल्स को इस मैप से कैलकुलेट करना है। तो हम एक काम करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, और इसको इस मैक्सी को इनिशियली हम मिनिमम वैल्यू असाइन कर देते हैं और मिनी को मैक्सिमम, और इसके बाद अपने मैप पे आइटरेट करेंगे और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो मैप पे आइटरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑटो एंड यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, राइट। पहली वैल्यू की होगी, अब हमने यहाँ पे की जगह पे वैल्यू को स्टोर कराया है, और दूसरी वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने वो दोनों वैल्यूज के लिए मैप को करूंगा आइटरेट, और अपने मैक्सी और मिनी को कर दूंगा अपडेट। तो मैक्सी होगा मैक्स ऑफ वॉट एवर दिस वैल्यू इज एंड वॉट एवर द प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ से हमारा मैक्सी अपडेट हो जाएगा, और सेम तरीके से हम अपने मिनी को भी अपडेट कर देंगे। इस बार हम मिन का यूज करेंगे, वैल्यू एंड मिनी। तो अब हमारा मैक्सी और मिनिमम वैल्यूज अपडेट हो चुके हैं, बस हमें विंडो की वैलिडिटी चेक करनी है, और अगर हमारी विंडो वैलिड नहीं है तो जब तक भी ये वैलिड नहीं है हम अपने एल पॉइंटर को मूव करेंगे, राइट। तो वाइल मैक्सी माइनस मिनिमम, जब तक ये डिफरेंस ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब हमारी विंडो इस वक्त वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ एल, ये जहाँ पे भी एल जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे मैप से कर देंगे कम। और फिर क्या करेंगे, अगर ये फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इफ एमपी ऑफ नम्स ऑफ एल, अगर ये जीरो है तो हम मैप से इसको इरेज ही कर देंगे। फाइन, सो दिस इज डन। इसके बाद हमें अगेन पिछली बार जैसे ही अपने मैक्सी और मिनिमम को अपडेट करना था, राइट। तो यहाँ पे इनको एक काम करते हैं, फिर से मैक्स और मिन पे पॉइंट करा लेते हैं, और फिर हम इनको अपडेट कर देंगे। फाइन, तो यहाँ पे हमने इनको अपडेट करा लिया है, और जब भी हम इसको नम्स ऑफ एल को रिमूव कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने एल पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे। फाइन, तो हमने यहाँ पे एल पॉइंटर को मूव करा दिया है, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा एल पॉइंटर आगे आगे मूव होता रहेगा। और वंस वी आर डन विद दिस, इसका मतलब इस स्टेप के बाद हमारी विंडो एक वैलिड विंडो बन चुकी है। तो हम अपने आंसर को करा लेंगे अपडेट, जो भी करंट विंडो की लेंथ है उससे, और फाइनली हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सा कोड था, एक बार इसको रन करके देखते हैं। एंड गिवन टेस्ट केसेस आर गेटिंग पास्ड, लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस, एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो सबसे पहले तो हमने एक लूप चलाया है जिसमें कि हम इस नम्स के हर एलिमेंट पे विजिट कर रहे हैं, राइट। और अगर हम इसके अंदर इस बार बार जो हमारा मैक्सी और मिनिमम कैलकुलेट करने वाली लूप को देखें, तो यहाँ पे सी हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ 3 बार ही मैप में आइटरेट कर रहे होंगे, राइट। यहाँ पे भी जब हम रिमूव कर रहे हैं तो 3 ही बार आइटरेट कर रहे हैं, और ये वाला लूप भी हमारा अगर हमारा आर एन बार मूव हो रहा है, तो मैक्सिमम हर एक बार के लिए नहीं, बट ये मैक्सिमम एन टाइम्स ही चलेगा। तो रफली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ओ ऑफ 3n या 6n बोल सकते हैं, जो कि अगेन अगर हम 3 या 6 को कांस्टेंट बोलें, तो ओ ऑफ n ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एंड फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने यहाँ पे एक मैप यूज जरूर किया है, बट सी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे मैप में मैक्सिमम वैल्यूज तो 3 ही स्टोर होने वाली है, राइट। तो इसको भी हम O1 बोल सकते हैं। सो या O n and O1 would be the time and space complexities. So this is it for this problem. Thank you. See you.